اب جی سب سے پہلے میں آپ کو رپورٹ دکھاتا ہوں، پھر صورتحال باقی کی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جی رپورٹ ہے کل والی، جب ہم لے گئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم آپریشن کریں گے 10 بجے، پھر ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو آسمہ باجی کو جب ڈرپ لگی تیاری مکمل ہو چکی تھی آپریشن کی، لیکن پھر جو ہے نا آسمہ باجی کو دورے پڑنے لگ گئے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ دورے جب پڑتے ہیں نا بندے کو، کیونکہ جب آپریشن ہوتا ہے بندہ ہوتا ہے نشے میں، پھر دورہ پڑ جائے تو پھر ڈاکٹر اس کو نہیں سنبھال سکتے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا، کیونکہ اس بیچاری کو ایک تکلیف نہیں ہے، باقی بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں بیچاری کو، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت دینے والا، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ جا پچھے نے ڈاکٹر وہی بڑا ڈاکٹر ہے، کل اتوں گئے ہیں مشین لوائی سے اوور رپورٹ 3 جی مارو ڈے سی تے اے جرا تا خون چیک کیتے نے تے انہیں کہ خون پانی بھی پورا ہے، واقعی دورے تھی ون پائے گا۔ یہ جی رپورٹ ہے خون پانی کی جو کہ انہوں نے بنا کے دی ہے، اس پہ ہر چیز جو ہے نا نارمل ہے، پھر بھی دورے پڑنے لگے۔ جب دورے پڑتے ہیں نا تب آپریشن نہیں ہوتا ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے نا اس کا علاج کریں گے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے دورے پڑ جاتے ہیں۔ یہ والا بڑے ویلے بلا بھی دورہ تھی گئی سی، اذان ملتی پئی ہے، بہن میری بجتی کی ہے کہ بھاجا آسما کو دورہ تھی گئی۔ ایک دن پہلے بھی دورہ پڑ گیا تھا جب لے گئے تھے رات کو۔ یہ سمجھ نہیں آتی بھی کیا چکر ہے، سکھی نہیں تھی دی کل بوتل لگ گئے، ٹوٹیاں لگ گئے، سارا انتظام تھی گئے، پیسے جمع تھی گئے، واتے راز بن گئے۔ کوئی درد اٹھا تھا یا کوئی ویسے چکر آنے لگ گئے تھے؟ انہوں نے نا ایک ٹیکہ مجھے لگایا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا نا رات کو جب گئے تھے نا اس نے کہا تھا صبح آپ نے کچھ نہیں کھا کے آنا ہے، بے آپریشن جو ہے نا نہرنیاں کریں گے۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، پھر وہاں بھی شام ہو گئی، انہوں نے ایک ٹیکہ لگایا نا مجھے الٹی آنے لگ گئی۔ میں نے کہا مجھے الٹی آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ نے کھایا بھی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کو الٹی کیسے آ رہی ہے؟ پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی بوتل لگائی، مجھے نا اتنی تیز بخار ہو گیا نا، انہوں نے وہ بوتل لگائی میری پیچھو پوری کانڈے تے ہاں میں درد پون پہ گئے، بجے میرے ہاں درد پہ وال میں کہہ نہیں پتا۔ وہ سلمہ باجی آتی ہے بہت کو ٹیکے لائے نے، بڑی باجی بھی تھا یہ پہ بڑی بہن بھی، وہ یہ کریں رہ گئے، میں کہہ نہیں پتا میں کیا تھے وال آدھا کچھ ہوش ہے چاہیے وال میں کہا کہ میں اٹھاؤ میں تھوم نہ سکتی ہم انہیں وال میں اٹھایا، وال میں کوئی پتہ کہ نہیں کیا تھی ویندا اکھی دے اندھارا تھی ویندا یا دانے ویلے میں اٹھیاں چیل کو درد آئی پٹھے اکڑیندے ویندا سر درد پہ گئے، وال میں کہہ نہیں پتا، وال ماسی اپڑ کے اندروں گھن گئی میں کوئی پتہ کہ نہیں، میرے کو پتہ نہیں کیا تھی ویندا۔ ہم جی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہماری باجی آسمہ کو صحت عطا فرمائے، اور جتنی بھی ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بھائی بزرگ دنیا کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں تکلیفیں، اللہ تعالیٰ تمام تکلیفیں تمام امت مسلمہ کی دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب جی ایک امانت ہے میرے پاس، اور میرے بہت ہی پیارے بھائی ثناء اللہ خان آپ رہتے ہیں یو کے میں، ان کی طرف سے جو ہے نا ہماری فیملی کے لیے دی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں آسمہ باجی کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ ابھی یہ ڈاکٹر کے پاس پھر سے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والا ہے۔ دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کی اپیل ہے، آپ سب دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اس باجی آسمہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی اس کی مصیبت ہے یہ دور ہو جائے۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پہلے کہتے تھے کہ پتے کا مسئلہ ہے، لیکن اب تو ہم لے گئے تھے کل اور آپریشن کی تیاری بھی مکمل ہو گئی تھی، پھر جو ہے نا یہ دورے پڑنے لگ گئے۔ اب ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹروں کو بھی یہ دورے کس وجہ سے پڑ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ٹیسٹ بھی کیے ہیں، خون کی رپورٹ اور پانی کی رپورٹ بھی مکمل ٹھیک ہے، نارمل ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دورے کیوں پڑنے لگ گئے ہیں۔ حالانکہ جب ہم وہاں پہنچے تھے ہاسپٹل، انہوں نے تیاری مکمل کر لی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا آپریشن کے لیے سارے انتظام جو ہوتے ہیں وہ مکمل ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ڈرپ لگائی، طاقت والی شاید انہوں نے ڈرپ لگائی، پھر اس کے بعد فوراً جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد آپریشن تھا۔ ڈاکٹر بھی وہیں پہ موجود تھا، اور جو اس کی جو ڈاکٹر تھی وہ بھی ساتھ میں اس کے موجود تھی آپریشن تھیٹر میں، لیکن وہیں پہ جو ہے نا جب ڈرپ لگی تو آسمہ باجی کو دورے پڑنے لگ گئے، اور جیسے دورے پڑنے شروع ہوئے تو سلمہ باجی روتے ہوئے باہر آئی، تو اس نے اماں کو بتایا کہ ہم سب وہیں بیٹھے تھے، تو اس نے بتایا کہ وہ رونے لگے، ہم پوچھتے رہے لیکن وہ رو رہی تھی، تو ہم نے پوچھا، پھر اماں بھاگتی ہوئی اندر گئی جو روم تھا اس میں، تو وہاں جا کے اماں نے ڈاکٹر سے یہ کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کیوں دورے پڑ رہے ہیں، حالانکہ آپ خود بھی موجود ہیں، آپ نے ڈرپ لگائی ہے تو دورے پڑنے لگ گئے ہیں۔ تو پھر اسی وقت جو ہے نا وہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپریشن نہیں ہو سکتا، آپ اپنی بیٹی کو گھر لے جائیں، ہم نے اس کو جو ہے نا انجیکشن وغیرہ لگا دی ہیں، ڈرپ لگا دی ہے، جب تک یہ اس کے دورے جو ہے نا ختم نہیں ہوں گے تب تک ہم آپریشن نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ کرے ہم آپریشن شروع کریں تو دورہ پڑ جائے تو پھر بندے کی جان بھی جا سکتی، اس وجہ سے ہم جو ہے نا آپریشن ابھی نہیں کر سکتے۔ آپ 2-3 دن کے لیے ویٹ کریں، تاکہ پھر انہوں نے پھر ہمیں ایک اور ڈاکٹر کے پاس بھیجا، انہوں نے لکھ کے دیا کہ وہاں سے آپ ٹیسٹ کروا کے آئیں، وہاں سے ہم ٹیسٹ کرا کے آئے ہیں، جو ڈاکٹر اشتیاق کی میں نے آپ کو ابھی اماں دکھانا
डॉक्टर इश्तियाक है, उसके पास उन्होंने हमें भेजा। जो डॉक्टर नाजिया कैसर है उसने हमें भेजा, जो लेडी डॉक्टर है उसने कहा कि इसके पास जाएं। जब इस डॉक्टर के पास हम पहुंचे तो रिपोर्टें वगैरह सारा टेस्ट किए गए। उन्होंने कहा कि तीसरे दिन आपको उसकी रिपोर्ट मिलेगी। तो अब देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला खैर करे और मेरी बाजी आसमा ठीक हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मैं अपने भाई की अमानत जो कि 5000 भेजी गई है, और मैं अपने भाई के लिए दुआ गो हूँ जिनकी तरफ से बिरयानी बनाई गई, जिसकी तरफ से गोश्त रोटी का एहतमाम कराया गया। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और ये अनमोल तोहफ़ा उन्होंने हमारी फैमिली के लिए दिया है। और आसमा बाजी को तो वैसे भी ज़रूरत है बेचारी को, लेकिन यह है कि चाहे इमदाद ज़्यादा हो या थोड़ी हो, एक ज़रूरतमंद के लिए जो है ना उसको पता होता है जब ज़रूरत होती है तो ये कितनी अहमियत रखती है। पहले भी मेरी बाजियाँ रहती हैं, आप जर्मनी में रहती हैं, उन्होंने 2 मेरी बाजियाँ जर्मनी में रहती हैं, उन्होंने तावन किया था, सपोर्ट किया था। आज वही पैसे जो है ना आसमा बाजी के काम आ रहे हैं, तो वही पैसे आज बाजी आसमा पे लग रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी नेकी है जी, किसी की जान बचाना, किसी के दुख में काम आना, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना। अल्लाह ताला जिनको दिया है तो वो देते हैं, तो अल्लाह ताला उनके कारोबार में और बरकत नसीब फरमा देता है, क्योंकि रब रहमान है, किसी का दिया ज़ाया नहीं करता, वो उसमें बरकत डाल देता है। तो ये जी अमानत है मेरे पास, और मैं सबसे पहले आसमा बाजी के हवाले करता हूँ। ये ले बाजी, ये हमारा बहुत ही प्यारा भाई है सनाउल्लाह, आप रहता है यूके में, उसके लिए बाजी आप दुआ कर दें। अल्लाह पाक सारे भाई को हमेशा खुश रखे, अपनी इज्जत मान रखे। आमीन। उनकी जो भी दिल की ख्वाहिश है अल्लाह पाक उन्हें पूरा करे, हर दिल की ख्वाहिश उन्हें पूरी करे। अल्लाह पाक उन्हें कारोबार इसके बरकते रहमते नाज़िल फरमावे। अल्लाह पाक सारे जितनी बहनी बिरा इंसान तावन करना, अल्लाह पाक उन्हें सारे को हर दुख मुसीबत तो बचावे, तो हमेशा खुश रहे। देखने वाले बहनी बिरा हैं तो मेरे वास्ते दुआ करो, मैं बहुत तकलीफ है चाहूँ, वो मेरे वास्ते दुआ करो। अल्लाह पाक मेरे को लंबी जिंदगी देवे, मैं अपनी बेटी का आसरा हूँ भाई, मेरी धी मेरा आसरा तो मैं हूँ हाँ भाई। मेरी फैमिली, मेरी अम्मी, मेरा अबू, मेरी खाला, सारी मेरे बहनी बिरा बहुत परेशान हैं, मेरे वास्ते दुआ करो मैं ठीक थी ना, मैं सारी ज़िंदगी तो एहसान न भूसा, हमेशा तो दुआई दे सा, मेरे वास्ते दुआ करो। अल्लाह ताला आपको सेहत दे बाजी, लंबी ज़िंदगी दे, और आपकी तकलीफ़ को इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके इंशाल्लाह दूर कर देगा इंशाल्लाह। अब जी मैं ये अमानत अम्मा के हवाले करता हूँ, जो कि अम्मा के बहुत ही प्यारे बेटे, आप रहते हैं यूके में, सनाउल्लाह खान भाई, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए और उनके कारोबार में मारिज़ में बरकत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा अता करे, ताकि इसी तरह गरीबों के साथ तावन करते रहें। ये देखें जी, अनमोल रकम उन्होंने हमारे लिए दी है। ये आपकी अमानत आपके हवाले अम्मा हो गई है, और आप अपने बेटे के लिए दुआ करें। अल्लाह मेरे पुत्र को लंबी जिंदगी देवे, मेरा सोना ला इवें सुखा सहता मेरा पुत्र रह वने, उनके बच्चे भी सुखे सहते होवे अल्लाह भावे, घर वाली भी सुखी सहती होवे सी, भेणी भीरा प्यू माँ, अल्लाह कोई दुख मुसीबत ना दे मने, इवें हसदे वसदे रह वजन। अल्लाह से उन्हें दे कारोबार च बरकत पावे, मेरा सोना ला इवें अपनी रहमत देंदा रह वजने, ते सोने जा ज़ियारतां करावने। असां गरीबें दी दुआ ही ने, अल्लाह बहु दे मने, बहु दे मने, आमीन। लंबी जिंदगी होवे सी, कोई दुख ना आवे से अल्लाह भावे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी मैं आ गया हूँ काम वाली जगह पे, जहाँ पे मेरी बाजी शमीम काम कर रही है, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई सनाउल्लाह खान, आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से बहुत बड़ी रकम हमारी फैमिली के लिए दी गई है, और उसमें से 5000 रुपये शमीम बाजी के हैं, जो कि मैं इसके हवाले करता हूँ और दुआ लेता हूँ। ये ले बाजी, ये 5000 रुपये आपके हमारे बहुत ही प्यारे भाई सनाउल्लाह खान, आप रहते हैं यूके में, उन्होंने दिए हैं, तो उनके लिए बाजी दुआ कर दें। अल्लाह पाक सारे भाई दी लंबी ज़िंदगी करे, हमेशा हंसता बसता रहे, जो भी कारोबार करे अल्लाह पाक बरकत रहमत अता करे, जो भी उन्हें जा दिल जा मुरादान अल्लाह पाक पूरा करे, हमेशा खुश रहें अपने बच्चे, जो भी उन्हें बच्चे कारोबार करें जा पढ़ाई करें अल्लाह पाक उन्हें को कामयाबी अता करे, हमेशा हंसते बसते रहें। जो असाजे गरीब ने इतना इमदाद की थी अल्लाह पाक ये तो ज़्यादा अता को करे भाई को, आमीन। अब जी मैं आ गया हूँ नूरीना और रुबीना भाभी के पास, इनकी अमानत मेरे पास मौजूद है। हमारे बहुत ही प्यारे भाई सनाउल्लाह खान, आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से दी गई है, तो ये इनकी अमानत है, और मैं इनके हवाले करता हूँ। काम में मसरूफ़ हैं जी, आज का ज़माना 1 रुपया भी कोई किसी को नहीं देता, लेकिन हमारे लिए जितना इमदाद भेजी जाती है हम दिल से दुआ भी करते हैं और खुश भी हो जाते हैं। चलें, आज अल्लाह ताला ने हमारे बहन भाइयों को दिया है, तो वो हमारे लिए दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनका 1-1 रुपया जो हक़ के रास्ते पे दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ले भाभी, ये 1000 रुपये, 500 रुपये आपके, 500 नूरीना भाभी के, तो भाई के लिए दुआ कर जी। सनाउल्लाह भाई के लिए बहुत दुआ करें, अल्लाह को लंबी जिंदगी देवे, अल्लाह उनके बच्चे दी भी याद रखे, अल्लाह उनकी पूरी फैमिली दी लंबी जिंदगी रखे,
औखे वक्त चाहे 1 रुपया कमाते तो 500 सारे को लखा तो बराबर है, क्योंकि 1 रुपया जैसा इकट्ठा करें ना पूरी दिहाड़ी भी कमा देना 500 नहीं बढ़ता। अल्लाह पाक को हर दुनिया जा खुशियाँ दिखावे, अल्लाह पाक उनके दिल की जरी भी ख्वाहिश है अल्लाह भाई दी पूरी कर ले। सारी माँ जी है, बाबा जी है, जितना भी सारे भी लोग ने अल्लाह सारे को लंबी जिंदगी अता करे, उनको ढेरों ढेर खुशियाँ अता करे, उनकी फैमिली की खैर हो, उनके बच्चे की भी खैर हो जाए। सारे वक्त इतना पैसे भेजें, सारे वक्त 500 नहीं हज़ारों तो भी ज़्यादा है इंशाल्लाह। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अब जी मैं पहुंच आया हूँ अपनी बाजी सलमा के पास और इनकी अमानत भी मेरे पास मौजूद है और हमारे बहुत प्यारे भाई सनाउल्लाह खान आप रहते यूके में, उनकी तरफ से 5000 की रकम बाजी सलमा के लिए दी गई है, जो कि मैं लेके इनके पास पहुँच गया हूँ और ये रकम मैं इनके हवाले करता हूँ और भाईजान के लिए दुआ लेता हूँ, क्योंकि वो फ़रिश्ता सिफ़त इंसान, जितने भी मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, मेरे भाई बुज़ुर्ग जितने भी गरीबों के साथ तावन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, वो एक फ़रिश्ता सिफ़त इंसान है और हम सब उनके लिए दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ले बाजी 5000 की रकम भाई ने दी है तो उनके लिए दुआ कर दे। सुना अल्लाह मेरे भाई को बहू देवे, सुना अल्लाह उन्हें दी हर मुसीबत दूर करे, उन्हें दे माँ रिज़्क़ च बरकत पावे, सुना अल्लाह इंदे तो ज़्यादा अता करे जो इतनी दूर बह के ते असा गरीबे के ते सोचेन भाई सारे को तो एडे वक्त को एक है, क्योंकि एक तो सारे काम बांधन, एक बट्ठे बांधन, काम भी नहीं हो रहा और वक्त ये बहुत औखा है और इतनी दूर बैठ के भाई ने हमारे लिए सोचा है। सुना अल्लाह मेरे भाई को लंबी ते सुख सेहत ईमान वाली जिंदगी अता कर, उनकी घर वाले दी जिंदगी होवे, उनके बच्चे दी जिंदगी होवे, उनके प्यू माँ को सुख सेहत वाली जिंदगी दे। मेरा सोना अल्लाह इन्हें को किने ही कुछ ना थी वे, मेरा सोना अल्लाह इन्हें तो ज़्यादा इन्हें को अता कर जो इतनी दूर बैठ के ही हमारे लिए ये लाखों रुपया भेजते हैं, हमें इतनी अच्छे खाने के लिए पकवाते हैं, हमें जो खाते हैं हम उनके लिए हमेशा दुआ करते हैं, हमारे बच्चे उनके लिए दुआ करते हैं। सुना अल्लाह उनको कभी कुछ ना हो, सुना अल्लाह अपनी रहमत हमेशा उन पे बनाई रखना और अपने नेक अपनी ख़जानों से अपनी रहमत से उनको अता कर। मेरा सोना अल्लाह तेरे ख़जानों में बहुत भरा हुआ है, मेरा अल्लाह जो उतनी हमारे गरीबों को दे रहे हैं इससे भी ज़्यादा उनको अता कर। मेरा अल्लाह कभी मेरे भाई को कुछ भी ना हो, मेरा सोना अल्लाह मेरे भाई की लंबी ज़िंदगी और हमेशा खुश रहें। और जितने भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं, मेरी माँ जी हैं, बाबा जी हैं, हमारी आपियाँ हैं, भाई हैं, सोना अल्लाह सारे को सुख सेहत ईमान ज़िंदगी अता कर, कि नहीं उन्हें को कुछ ना थी। मेरा सोना अल्लाह जितनी गरीबों को देंदा पर इन्हें तो ज़्यादा ही उन्हें को अता कर। मेरा सोना अल्लाह अपनी रहमत हमेशा उन पे बनाई रख, सोना अल्लाह उन्हें को हमेशा अपने सुख के साए में हमेशा रहें। आमीन। हमारे लिए जी जितने बहन भाई हमारे लिए मदद भिजवा रहे हैं, यकीन करें वो हमारे लिए एक फ़रिश्ता हैं, फ़रिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि आजकल के दौर में सगे बहन भाई जो है ना, खून के रिश्ते भी कहते हैं ना, खून सफ़ेद हो चुके। बहुत प्यारे भाई सनाउल्लाह खान की तरफ से दी जा रही है, तो ये जी 1000 रुपये हैं, 500 रुपये सहमा भाभी 580 के हवाले करते हैं और इनसे दुआ लेते हैं कि भाई के लिए दुआ कर दें। ये लें भाभी, इसमें से 500 आपने 80 को देने हैं, तो भाई के लिए दुआ कर दें। ये अल्लाह पाक सारे भरा को बहु देवे, अल्लाह पाक उनके कारोबार है बरकत पावे, अल्लाह पाक को हर दुनिया की खुशियां देवे जिन्हें दो हकदार हैं। सारे वक्त इतना सोचने साकू ही गल दी बहुत बड़ी खुशी है कि सारे भेणी भरा सारे नाल औखे वक्त तामन करें, साकू यह खुशी है, चाहे अल्लाह पाक उनको बहु देवे जिन्हें सारे वक्त इतना सोचे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बेटा आप भी दुआ कर दें। जी हाँ, अल्लाह पाक को ढेर ढेर खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें माल काम में बरकत रहमत नाज़िल अता फरमाए, जितनी साकू रहते अल्लाह पाक इस तो भी ज़्यादा को अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत ही प्यारे भाई सनाउल्लाह खान आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से जिस तरह मुझे हुक्म हुआ आपके सामने है, तकसीम करना ये मुझ पे फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं अपना काम फ़र्ज़ समझ के करता हूँ। तो 5000 रुपये हमारे लिए दिए गए हैं, ये देखें सामने आपके मौजूद है, मैं तेरा के हवाले करता हूँ, दुआ लेता हूँ और फिर जो दूसरी अमानत मेरे पास है वो भी इंशाअल्लाह ताला मासी, फ़ातिमा और महनाज भाभी उनके हवाले करता हूँ। 3 बंदे रह गए, उनके हवाले कर। ये ले तेरा, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं सनाउल्लाह खान आप रहते यूके में, उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह पाक हमारे सनाउल्लाह भाई को हमेशा खुश रखे, उनकी बच्चों की खुशियाँ दिखाए उसे, और उनका जो भी कारोबार है उसमें बरकत डाले अल्लाह पाक, और उनके माँ बाप की लंबी ज़िंदगी करे, सुख सेहत वाली अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, और हमारे भाई को भी इतनी खुशियाँ दिखाए, इतनी खुशियाँ दिखाए अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा। हम गरीबों की तो यही दुआ है, सिर्फ हम दुआ ही मांग सकते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें इतनी खुशियाँ दिखाए, अपने ख़जानों में से इतनी अता करे कि उनके घर में रखने की जगह ना हो। या अल्लाह पाक हम गरीबों के दिल से निकली हुई दुआ उनके हक़ में कबूल करे, अल्लाह पाक हमेशा उन्हें खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी मेरी भाभियाँ दोनों आ गई हैं, इनकी अमानत मेरे पास मौजूद है और हमारे बहुत ही प्यारे भाई सनाउल्लाह खान आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से जो अमानत भेजी गई है वो इन्हीं की है और मैंने 500-500 रुपये सबको दे दिए हैं और इनके 200-200 रुपये अभी बाकी बचते हैं। इंशाल्लाह पैसे खुले नहीं थे, इंशाल्लाह खुले करा के वो भी मैं इनके हवाले कर दूँगा, ताकि 5000 थे और 7 बंदे थे, तो इस तरह जो है ना सबको 700-700 रुपये आते हैं। तो इनकी अमानत मेरे पास मौजूद है और 500-500 रुपये मैं इनके हवाले कर रहा हूँ, बाकी 200-200 रुपये जो है ना वो खुले करा के मैं इनको दे दूँगा। और दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
मेरे बहुत ही प्यारे भाई का दिया। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ले भाभी 500 आपने रखने हैं और 500 भाभी को देने हैं। महनाज को दुआ कर देनी है भाई के लिए। अल्लाह भैया का बहुत उसका मार इसका मतलब उसका बहुत खुश कर आमीन। ठीक है अल्लाह भाभी। पाक हमारे भाई को हमेशा खुश रखे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे, उसके माँ रिस्क में हमेशा बरकत पाए। आमीन या रब्बुल। अब जी मेरी मासी आ गई है, इसकी अमानत मेरे पास मौजूद है, मैं इनके हवाले करता हूँ और अपने प्यारे भाई के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनका दिया एक एक रुपया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितना उन्होंने हम जैसे गरीबों के लिए दिया है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और उनका दिया एक एक रुपया जहाँ कहीं भी वो उन्होंने पहुँचाया अपनी ज़िंदगी में, जो भी नेक अमल किया, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ले मासी 500 रुपये आपके, ये आखिरी अमानत थी, आपके हवाले कर दी है, तो भाई के लिए दुआ कर दें। अल्लाह मेरी भाई को बहू देवे, अल्लाह मेरे भाई दी लंबी जिंदगी रखे, अल्लाह उनके बच्चे दी जिंदगी होवे, अल्लाह उनके कारोबार है माह रिज़्क़ बरकत पावे, अल्लाह को बहू बरकत पावे, खुशियां देवे, खिलदा हंसदा रहे। आमीन या रब्बुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राशन लेके इन बच्चों की अमानत लेके मैं पहुंच चुका हूं आपके सामने। गट ओपन करते हैं और इसमें राशन निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें, इन बच्चों के पास आया था, छोटे छोटे जी बच्चे हैं, इनको राशन मिल जाएगा तो माशाल्लाह जब रोटी बना के खाएंगे तो दुआ करेंगे। ये देखें, ये जी बच्चे हैं यतीम बेचारे, ये बच्चे यतीम है ना। अल्लाह ताला उम्र दराज करे इनकी जी। इनका जो नसीब है अल्लाह की तरफ से आ गया है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर 15 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला, जैसे मैं 3 फैमिली तक राशन पहुँचाता हूँ, इंशाल्लाह इनका नसीब भी अल्लाह ताला पहुँचाएगा। अल्लाह ताला मदद करने वाला है, हम तो कोशिश करते हैं, बाकी करम अल्लाह ताला करता है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा अता करे। जो एक फरिश्ता सिफत इंसान है, जो गरीबों की खातिर अपने कीमती सरमाए में से निकाल के दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनका दिया एक एक रुपया हक़ के रास्ते पे अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी मैं आपको राशन चेक करा देता हूँ। ये देखें जी, ये एक बहुत बड़ी नेकी है, 2 थैले आटे के। और ये राशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तकरीबन 15-20 दिन इन बच्चों के अच्छे से गुजर जाएंगे। मैंने हर चीज़ भी इसमें शामिल की है। ये देखें, 3 लीटर घी भी है, दालें भी हैं, तेल की बोतल भी है, माचिस भी है, कपड़े धोने वाला साबुन भी है, नमक भी है, 3 किलो 4 किलो चीनी भी है। और ये देखें, बर्तनों वाला साबुन भी है, ये वाइटल भी है। ये देखें, चीनी 5 किलो है ना, चीनी 5 किलो है और चावल भी हैं इसमें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। को राशन चेक करा दिया है, दिखा दिया है। अब बाबा जी से दुआ लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथ उठाए बैठे हैं, अल्लाह ताला इनकी दुआ। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनके हक़ में अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। जितना उसने इन यतीम बच्चों के लिए दिया, अल्लाह ताला दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए। उनके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ उनको दिखाए। जो हमेशा गरीबों का ख्याल रखते हैं, यतीम मस्कीनों का ख्याल रखते हैं। आपको पता है, भट्ठा देखें सामने खड़ा है, भट्ठा बंद है। यहाँ पे जितनी भी लेबर है, भट्ठा मजदूर फैमिली हैं, बहुत परेशान हैं और बेचारे वो रो रहे हैं। कोई भूख से रो रहा है, कोई दवाई के लिए पैसे नहीं है, इस वजह से रो रहा है। और कारोबार तो है नहीं, परेशानी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। काम करा रहे हैं, 1-2 तरीके लगवा रहे हैं, दिहाड़ियाँ लगवा रहे हैं, उससे क्या बनता है? उसमें से दूध और लकड़ियों के पैसे पूरे नहीं होते। छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन तक राशन पहुंचा है आपके सामने। जब ये इनका जो है ना, ये बाबा जी इनको बना के खिलाएंगे रोटी, क्योंकि ये 5 बच्चे बाबा जी आपके पास होते हैं। हाँ जी, अपने स्पुरदारी है जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बड़ा औखा सामदा ਪਿਆਂਦਾ। अच्छा, इनकी जो माँ है, उसने भी ये आपके जिम्मे लगाए हैं? हाँ जी, वो फौत हो गई उसी ओहो। ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੁੜੀ ਢੀਜੀ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਂਭਦਾ ਪਿਆ अच्छा ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਖਾ ਦੇਵੇ। अच्छा बाबा जी, आप काम करने वाले अकेले हैं? हाँ जी। अच्छा, और कोई सहारा नहीं अल्लाह के साथ? नहीं, होर को नहीं है। अच्छा, आपका कोई बेटा, घर वाली? बेटा है हौला है आली, घर वाली कोई भी नहीं, फौत हो गई चरोकनी। ओहो। छोटे छोटे मेरे बच्चे सन, जे फौत हुई है तो अच्छा आ पिछे मुड़ बच्चे दी मैं शादी की अच्छा, यानी कि अपने बच्चे वो भी यतीम हैं और उस बाजी के बच्चे भी, जिसके ये बच्चे आपके पास हैं, वो हाँ भी जी। ये भी यतीम है? हाँ जी, हाँ जी। ओहो, अल्लाह अकबर। ये देखें जी, बाबा जी कह रहे हैं कि ये 5 बच्चे जो है ना, छोटे छोटे, ये इस बाबा जी के पास होते हैं। एक बच्ची वो है जी। बाबा जी इनकी देखभाल करते हैं, इनके कपड़े, इनके जूते, सारा सामान जो है ना, इनकी ज़रूरियात का ये बाबा जी अकेले हैं, काम करते हैं, इनको ला के देते हैं। बहुत ही बेचारे परेशान थे, अल्लाह ताला ने मदद कर दी। उस दिन मैं आया था तो ये बच्चे जो है ना, छोटे छोटे देखें, हाथ उठाए बैठे हैं। ये बेचारे मिर्चों के साथ उसमें पानी ऐड करके वो बेचारे खा रहे थे। देखें, अब इनको राशन मिल गया है, माशाल्लाह अच्छा खाना खाएंगे तो बाजी के हक़ में दुआ करेंगे। बाबा जी, आप बाजी के लिए दुआ कर दें। हाँ जी, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इन्हां नूं चोखा देवे आमीन। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੰਦ ਵੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਚੋਖਾ ਦੇਵੇ। आमीन ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ आमीन ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੋਖਾ ਦਿੰਨੇ। आमीन। बाबा जी खुश हो? हाँ जी, खुश है। बेटा खुश हो? हैं खुश हो? दुआ करोगे बाजी के लिए? हाँ जी। है
दुआ करनी है बाजी के लिए, ठीक है, जिन्होंने आप तक राशन पहुँचाया, ठीक है बेटा, दुआ करनी है ना, हाँ दुआ करनी है बाजी के लिए, ठीक है बेटा, दुआ करनी है बाजी के लिए, ठीक है माशाल्लाह, ठीक है बेटा, दुआ करनी है, खुश हो माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब जी मैं राशन लेके एक और ही हकदार मुस्तहिक फैमिली के पास पहुंच गया हूं। अभी ये काम में मसरूफ़ हैं क्योंकि 1-2 दिहाड़ियाँ लग रही हैं, उससे जो है ना घर के निज़ाम पूरे नहीं होते, राशन लेना होता है, साथ में लकड़ियाँ, दूध के पैसे, ये सारा निज़ाम जो है ना बड़ी मुश्किल से चलता है। और अब ये सूरत हाल हो गई है कि उधार भी कोई नहीं दे रहा। चलें, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से जो है ना इस फैमिली के लिए राशन भेजा गया है। ये आपके सामने है, मैं आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। दिखाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आपको तसल्ली हो जाए कि जो चीज़ें आपने मुझसे कही थी वो हकदार तक पहुंची हैं। भाई इसे खोलें, सारी चीज़ें दिखाएं। ये देखें जी, 3 लीटर घी भी है, साथ में माचिस भी है, बरतने वाला साबुन भी है, मरच भी है और नहाने वाला साबुन भी है, साथ में घी भी है, चावल भी हैं, नमक भी है, दाल भी है चने की और साथ में वो ये देखें, ये मेरे ख्याल में मिस्री की दाल है, ये भी है, सर्फ भी है, ये देखें ये चने की दाल भी है और ये चीनी भी आपके सामने मौजूद है और 2 थैले आटे की भी मौजूद हैं। इनका 15 दिन का जो है ना अच्छे से अच्छा निज़ाम चल जाएगा। ये बेचारे दुआएं देंगे क्योंकि गरीब फैमिली हैं और इस वक्त बहुत ही परेशान हैं। और जब भी कोई अमानत भेजी जाती है तो हकदार फैमिलियाँ ढूंढना, उन तक पहुँचाना ये मेरा फ़र्ज़ होता है क्योंकि मैं अपने काम को फ़र्ज़ समझ के करता हूँ। जितनी मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ मेरे साथ इस नेक मकसद में चल रहे हैं, उन सब के लिए दुआ रहती है कि या अल्लाह उनके कारोबार में, मारिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा, ताकि इसी तरह जो मजबूर हैं, जो परेशान हाल हैं, जिनके पास राशन नहीं है, जो तकलीफ़ों में हैं, पैसे नहीं इलाज के लिए, ताकि उन तक ये कीमती सरमाया पहुंचा सकें, तेरे नाम पे दे सकें। उनके कारोबार में दिन दुगना रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी से भी दुआ लेते हैं। सबसे पहले जी मैं इस तरफ मैंने देखा है, आपको ये बंगला दिखा देता हूँ जो कि बच्चों ने शायद बनाया है और कितनी मेहनत से बनाया है। ये देखें, ये मिट्टी है और ये जी ये बिल्डिंग उतरी हुई है और ये बड़ा खूबसूरत ही, ये जिसने बनाया है उसने कमाल ही कर दिया है। उधर मेरे ख्याल में वो जो है ना वो अलहदा जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, जहाँ पे खाना वगैरह किचन का जो है ना निज़ाम होता है। और यहाँ पे जी देखें क्या ही कारीगरी है, भट्ठे पे इतना बड़ा टैलेंट मौजूद है। अच्छा जी, ये महल जो तैयार किए है बाजी ने अपने लिए, ये जो है ना बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी, मैंने कहा अपने देखने वाले बहन भाइयों को दिखा दूं। और ये जिस बाजी को मैंने राशन दिया है, ये बाजी ने अपने हाथों से तैयार किया है। देखें कैसे जो है ना देख के दिल खुश हो गया है, कितनी प्यारी बिल्डिंग लग रही है। तो बाजी आप ना उस बाजी के लिए दुआ कर दें जिन्होंने आपके साथ तावन किया है, राशन पहुँचाए। अल्लाह उस बाजी ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਾਵੇ, ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਇਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਕਿ बाजी खुश है? खुश है, बहुत खुश है। अल्लाह ਉਹਨੂੰ खुश रखे जिन्हें सानू खुश किया है। कि देखें आप परेशान थे, अल्लाह ताला ने कर्जा साढ़े ते बहुत है, कर्जा नहीं लत्ता जाता, छोटे छोटे बच्चे हैं, कम भी नहीं होता, सर्दी है, निके निके बच्चे हैं, घर का समान कोई चीज़ भी को नहीं है। कि अच्छा अल्लाह ताला ने मदद कर घर भी को नहीं है, साडा अपनी जमीन भी को नहीं है, बस दिल खुश करने वास्ते मैं अपना सिर्फ बनाया है कि भी चल बंदे का दिल खुश होता रहता है। अच्छा बाजी, आपने ये देखें जी, ये जो मकान बनाया है ना, बाजी कह रही है अपने दिल को खुश किया है क्योंकि अपने तो गरीब बंदे हैं जी, गरीब फैमिलियां हैं। अगर साडा भी घर होवे ना, साडा भी जमीन होवे ना, तो अल्लाह सानू भी इस तरह का घर देवे। अच्छा बाजी परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला देने वाला है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर अता करेगा। कोई बहन भाई हमारी हेल्प करे तो साडा कर्जा बहुत ज्यादा है। भी चलो कितना कर्जा है बाजी आप पे? 2 लाख रुपया है। ओहो 2 लाख रुपए, बहुत बड़ी रकम है जी। अच्छा चलें बाजी, अल्लाह ताला ने आपकी हेल्प कर दी है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हीले वसीले बनाता है और अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह आपका कर्ज भी उतर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बाजी, खुश हैं? खुश, बहुत खुश है। बेटा आप खुश हैं? जी खुश। भाई आप भी दुआ कर दें बाजी। अल्लाह ताला बाजी को बहुत दे जिसने हमारी मदद की। हम बहुत परेशान थे, घर में कुछ भी नहीं था, निके निके बच्चों के परेशानी से बैठे थे। चले अल्लाह ताला ने मदद कर दी है। जी। खुश हैं भाई? खुश हैं, अल्लाह बहुत माशाल्लाह जी। आप जी माशाल्लाह दुआ करते हैं अपनी तमाम बाजियों के लिए, माओं के लिए और उनके कारोबार के लिए कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुशी रखे। सनाउल्लाह भाई खान के लिए और अपनी बहुत ही प्यारी बाजी के लिए जिनकी तरफ से राशन दिया गया है, यतीम बच्चों के लिए, गरीब फैमिली तक राशन पहुँचे, उन सब के लिए दुआ करते हैं। करीम तो दिलों के हाल जानने वाला है, नीयतों को परखने वाला है, पोशीदा और ज़ाहिर सब कुछ तेरे इल्म में है। या अल्लाह हम तेरी हम्द बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें नेकी के रास्ते दिखाए, इंसानियत की खिदमत का शऊर अता फरमाया।
یا اللہ آج کی اس دعا میں ہم اپنے ان تمام بہنوں اور ماؤں کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں، دن رات محنت کر کے اپنی راحتوں کو قربان کر کے غریبوں، محتاجوں، بیووں، یتیموں اور مجبوروں تک راشن اور مالی امداد پہنچا رہی ہیں۔ یا رب ان کے قدموں کو ثابت رکھ، ان کے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، ان کی نیتوں کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے۔ یا اللہ جو بہنیں اور مائیں تیرے بندوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، ان کی صحت کی حفاظت فرما، ان کے جسموں کو طاقت عطا فرما، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کے گھروں میں راحت نازل فرما۔ یا رب ان پر کوئی بیماری، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آئے تو اسے اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ ان کی اولاد کو نیک، صالح، فرما بردار اور دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما، ان کی اولاد کی حفاظت فرما، ان کی تعلیم، تربیت اور مستقبل میں برکت عطا فرما۔ یا رب ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کے دلوں میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ جن کا کاروبار ہے، جن کے رزق کے ذرائع ہیں، یا رب ان میں حلال برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرما، ان کے رزق کو کشادہ فرما، ان کے خساروں کو منافع میں بدل دے، ان کی محنتوں کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان میں سے کوئی بہن یا ماں کسی تکلیف، پریشانی، کر، دکھ، غم یا آزمائش میں مبتلا ہیں تو یا رب اپنی رحمت سے اس کی تکلیفیں دور فرما۔ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جو دلوں میں چھپا ہوا درد ہے تو اسے بھی جانتا ہے، یا اللہ اس پر اپنی شفا اور سکون نازل فرما۔ یا اللہ تو ان کو اور زیادہ توانائی، ہمت، طاقت اور وسعت عطا فرما تاکہ یہ انسان کی خدمت مزید بہتر طریقے سے کرتی رہیں۔ یا رب ان کے قدم جہاں بھی جائیں وہاں خیر رکھ دے، برکت رکھ دے، آسانی رکھ دے۔ یا اللہ جو دن رات محنت کر کے غریبوں تک پہنچاتی ہیں، مالی امداد پہنچاتی ہیں، ان کے ہر قدم کو صدقہ بنا دے، ان کے ہر عمل کو عبادت بنا دے۔ یا رب ان کا یہ قیمتی سرمایہ اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی وہ بیٹھی ہیں، جہاں کہیں بھی وہ جائیں تو انہیں خیر و عافیت کے ساتھ رکھ، سفر میں ہوں تو حفاظت فرما، گھر میں ہوں تو سکون عطا فرما، کام میں ہوں تو کامیابی عطا فرما، ان کی ارادوں میں رکاوٹیں نہ آنے دے، ان کے راستوں کو ہموار بنا دے۔ یا اللہ ان کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ، ایک ایک دانہ، ایک ایک تھیلا، ایک ایک مدد اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ یا رب جس جس تک راشن پہنچا، جس جس تک مالی امداد پہنچی، ان سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور مجبوروں کے دلوں سے نکلنے والی دعاؤں کو ان بہنوں اور ماؤں کے لیے ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ان دعاؤں کو ان کے لیے ڈھال بنا دے، حفاظت بنا دے، کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جن کی مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا رب ان سب کو اس نیکی کا ثواب عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان نیکیوں سے حصہ عطا فرما، ہمیں بھی خدمت خلق کا جذبہ نصیب فرما، ہمیں بھی دینے والا بنا۔ یا رب ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو بخش دے۔ یا اللہ یہ دعا ہم نے اپنے الفاظ میں مانگی، اگر اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو یا رب اپنے کرم سے پوری فرما دینا۔ ہمیں یقین ہے کہ تو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو، ان بہنوں، ان ماؤں کی محنت کو اور ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآل آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیا کریں۔ چینل پر اگر پہلی بار ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔